हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एक टॉपिक है जिसका कि नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये वीडियो बहुत समय के बाद आ रहा है। बहुत समय बोले तो अगर एक दिन में मैं एक वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ तो लगता है बहुत लंबा समय हो गया। तो आज मैं दिन भर में एक भी वीडियो नहीं अपलोड किया हूँ। तो आज मेरा बहुत इच्छा था कि, और बच्चे का डिमांड भी बहुत था क्योंकि उन लोग का एग्ज़ाम भी पास आने वाला है, कि नाइट्रोजन साइकिल को एक बार समझा दिया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल यूज़ हम लोग को क्यों किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन साइकिल चलाने का जरूरत क्यों पड़ा। वाटर साइकिल होता है ना, वाटर साइकिल कहने का मतलब क्या हुआ, जो अर्थ पे वाटर है दे कैन इवापोरेट एंड गो ऑन द क्लाउड, दे फॉर्म द क्लाउड एंड आफ्टर अगेन दे विल कम ऑन द अर्थ, दे गो अगेन ऑन द एनवायरमेंट, दे कम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड water cycle. So nitrogen cycle means the nitrogen which is used by plant, the nitrogen which is used or which is stored in the soil. But if that is stored in the soil, then where does it uses? It is used by plants or different other leguminous plants or different type of plants. Okay, because nitrogen is what we can say that basic component of our body. Nitrogen is responsible in plant to form chlorophyll. Nitrogen is responsible in our body to form amino acid. Nitrogen is responsible in our body or in plants to form nucleic acid, DNA, etc. That's all. Okay, now I am going to start nitrogen cycle. First, this is atmospheric nitrogen. This is atmosphere. I have written so many words in the short, so don't mind it. Okay, just I am saying also how it is going. Atmospheric nitrogen, this is the simple diagram of nitrogen. Okay, whatever it is given in your book, just remember that, just you study this one. If you will study this one, you will get better idea of nitrogen cycle. Atmospheric nitrogen convert into compound of nitrogen in the soil. Main purpose is to convert this atmosphere nitrogen into soil. Okay, now further we will study how the atmospheric nitrogen get converted into soil nitrogen. First, atmospheric nitrogen, here is nitrogen fixing bacteria and blue-green algae fix atmospheric nitrogen. Bacteria and blue-green algae, this bacteria and blue-green algae, some blue-green algae fix the atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen means the nitrogen which is found in the gaseous form, which is not usable by plant, which is not usable by our body. But if it will be converted into ammonia, nitrite, nitrates, further, that's all. Mainly nitrate and nitrite is usable from in the plants, and if the plant will use, then it will come to our body, it will reach to our body. Nitrogen fixing bacteria and blue-green algae fix atmospheric nitrogen, and after fixing this atmospheric nitrogen, this gaseous nitrogen into compound form. Just here one step is also, bacteria in turn fix nitrogen into nitrogenous compound. Yes, what is the nitrogenous compound, sir? NO3 minus, NO2 minus, nitrites or nitrates, not respectively because I have told alternatively. Okay, nitrites or nitrates, that is the form which is used by plants, mainly nitrates, NO3 minus. Nitrate is the form which is used by plant for the further development of their bodies, and that is also usable in our body. If plant will use, then it will reach to our body. Okay, simultaneously bacteria in turns fix nitrogen into nitrogenous compound. Okay, now what will be the compounds, sir? Nitrate or nitrites. Okay, compound of nitrogen in the soil. Yes, now the atmospheric nitrogen has reached in the soil. Now what will happen, sir? Now next process, the soil nitrogen is uptaken by plants. The plant will take soil nitrogen and they will grow up, and when they will grow up, then at one stage the plant is eaten by animals. Okay, plant is eaten by animals, means plants are producer. Just remind the food chain. Plants are producer, sir, plants are producer, and the animals who is uptaking the plant for the food purpose, they are primary consumer. Plant is producer and the animal who is uptaking the plant for the purpose of food, that animal is called
primary consumer, like as rabbit eating grass. Rabbit is the primary consumer. Okay, now one step again, this is the first step to fix the atmospheric nitrogen, to fix the gaseous form nitrogen. second process is lightning. when just हम लोग जानते हैं कि जब बिजली कड़कता है, तो बिजली कड़कता है ना, उस टाइम में बहुत जोर का लाइट आता है, तो वो लाइटनिंग के द्वारा बिजली कड़कने के समय में बहुत सारा नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर आके मिलता है. ओके, now animal eats plant. Yes sir, when animal eats plant, the nitrogenous waste from excretion and death, means just think that if animal has eaten the plant, then the plant have nitrogenous waste, and if plant have nitrogenous waste, when the animal get digest that food, when animals get digest that food, then they will excrete out the undigested food. Some part will be there that which is not digested, कुछ part है जो digest नहीं हुआ है. तो जो part digest नहीं हुआ है, जब पौधा को खाया गया animals के द्वारा, तो जो part digest नहीं हुआ है वो part excretion के form में बाहर आ जाएगा. Like just think cow dung. Okay, just think that cow dung के फॉर्म में, तो काउ डंग में तुम्हारा नाइट्रोजिनस वेस्ट भी रहेगा. तो नाइट्रोजिनस वेस्ट हुआ. या सेकंड केस, अगर एनिमल किसी कारणवश डेथ कर जाता है, तो उसके बॉडी में तो नाइट्रोजन है, एमाइनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, दिस ऑल आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. दे विल मिक्स इन द सॉइल, एंड व्हेन दे विल मिक्स इन द सॉइल गेट नाइट्रोजन रिच. ओके, नाउ nitrogenous waste from excretory material plus death. Okay, now that waste material and that death part comes again into soil. मतलब एटमॉस्फेयर से लाइटनिंग हुआ तो मिट्टी में आया, एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, और जब नाइट्रोजिनस को फिक्स किया नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, तो ये भी मिट्टी में आके मिला. फाइनली ये जितना भी मिट्टी का कंपाउंड है, जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है जो कि मिट्टी में आके मिला है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, दे विल फाइनली गोज टू द bacteria, turns compound of nitrogen into gaseous form, and the bacteria which is responsible for the conversion of soil nitrogen into environment into gaseous form, that is Pseudomonas. Okay, Pseudomonas is the bacteria which convert soil nitrogen into the nitrogenous, means bacteria turns compound of nitrogen into gaseous nitrogen, soil nitrogen converted into gaseous nitrogen, and again they will goes to the environment. Okay, because environment has 78% nitrogen, oxygen we need, but environment has 78% nitrogen, so that nitrogen again goes to the environment. मतलब environment से मिट्टी में आया और मिट्टी से फिर environment के अंदर चला गया, मिट्टी environment से मिट्टी में आया और मिट्टी से फिर environment में चला गया, फिर घुमा फिरा एनिमल्स तक गया, प्लांट तक गया, फिर वापस मिट्टी के अंदर आया, फिर वो चला गया. तो यही प्रोसेस जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल है, और जो हमारा नोट्स है उस चीज को अब हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए. ओके, राइजोबियम एक लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है. इस बैक्टीरिया का काम होता है कि सॉइल में, एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना. नाइट्रेट्स बोले तो NO3-. नाइट्रेट्स में ये कन्वर्ट इसलिए करता है क्योंकि नाइट्रेट सॉइल के अंदर सॉल्यूबल होता है, और नाइट्रोजन तो नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर मेरा नाइट्रोजन है N2. ठीक है, नाइट्रोजन है हमारा N2. सॉइल के अंदर भी जो नाइट्रोजन पाया जा रहा है, जो सिंगल फॉर्म में है या फिर कंपाउंड फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट किया NO3- के फॉर्म में. वो कन्वर्ट इसलिए किया ताकि वो प्लांट्स के रूट में इजिली एब्जॉर्ब हो सके. नाइट्रोजन जो फ्री फॉर्म था सॉइल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, सबको वो कैप्चर किया. कैप्चर करने के बाद वो कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स के अंदर, हम डबल रिपीट कर रहे हैं, नाइट्रेट्स के अंदर, और उसको सॉल्यूबल बनाया. अगर वो सॉल्यूबल होगा तो प्लांट के रूट में इजिली एब्जॉर्ब किया जा सकेगा. अगर वो सॉल्यूबल नहीं होगा तो वो प्लांट के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा. एब्जॉर्ब क्यों किया जाएगा, वो क्यों एब्जॉर्ब किया जाता है, ताकि प्लांट्स को सही अमाउंट में नाइट्रोजन प्राप्त हो सके. अगर प्लांट को सही अमाउंट में नाइट्रोजन मिल सकेगा तो प्लांट का क्लोरोफिल, प्लांट के अंदर प्रोटीन, ये सब अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जितना भी कंपोनेंट है सेल का या प्लांट्स के सेल का, वो सारा सिंथेसाइज हो पाएगा. तो सॉल्यूबल इसलिए हो पाया ताकि रूट्स के द्वारा इजिली एब्जॉर्ब किया जा सके, और एब्जॉर्ब इसलिए किया जाएगा कि क्लोरोफिल बना सकेगा, और प्लांट्स का जितना भी कंपोनेंट है जो कि अभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस किए, क्लोरोफिल बोले, अमाइनो एसिड बोले, न्यूक्लिक एसिड बोले, हम यहाँ पे सबको मेंशन कर चुके हैं आपके नोट्स के लिए, बस आप सुनते जाइएगा. अब ये हुआ.
अब क्या हुआ कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, कुछ ऐसा भी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया तो नोड्यूल्स के अंदर पाया जा रहा था सॉइल बैक्टीरिया, लेकिन जब प्लांट्स था तब, प्लांट्स नहीं रहेगा तो ये बैक्टीरिया नहीं रहेगा। क्यों सर? क्योंकि ये रूट्स के अंदर पाया जा रहा है, काम कर रहा है सॉइल का और एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का, लेकिन ये पाया कहां जा रहा है? रूट नोड्यूल्स में। बट सेकंड केस में, ये केस आप ध्यान रखिएगा, इस केस में एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, आपको सॉइल के अंदर ये नॉर्मली मिल जाएगा। ये बैक्टीरिया का क्या होता है, जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर अवेलेबल है, सिर्फ सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अमोनिया के फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करना क्योंकि जब हमारा फील्ड में, मान के चलो मेरा 1 बीघा का फील्ड है, उस फील्ड में हम कोई लेग्यूमिनेसी प्लांट का क्रॉप लगा दिए। जब लेग्यूमिनेसी प्लांट का क्रॉप लगाए तो क्योंकि लेग्यूमिनेसी प्लांट का ये नेचर होता है कि नाइट्रोजन को ज्यादा इस्तेमाल करता है, जैसे बीन प्लांट, ओके, बीन प्लांट का ये नेचर होता है कि वो नाइट्रोजन को ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो नाइट्रोजन जब ज्यादा इस्तेमाल होगा तो मिट्टी से तो नाइट्रोजन का लॉस होगा, तो वापस से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो, बिल्कुल आना चाहिए, वापस मिट्टी के अंदर आना चाहिए। तो ये एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम नॉर्मली सॉइल के अंदर जहां पे राइजोबियम होगा वहां पे ये बैक्टीरिया आपको जरूर मिलेगा, हर जगह तो नहीं मिलेगा, लेकिन जहां राइजोबियम का निशानी रहेगा वहां पे ये दौड़ता हुआ चला आएगा बाय नेचर। एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर, ये क्या करता है, सॉइल के नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन मिट्टी के द्वारा लॉस हो चुका है, जो प्लांट इस्तेमाल कर चुका है, कौन प्लांट? लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट, बीन प्लांट, वो चाहे इस फैमिली का कोई भी प्लांट, बीन के अलावा भी आप गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। एजिटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम, इसका काम होता है कि जो भी नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फ्री फॉर्म में अवेलेबल है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना। अमोनिया में क्यों कन्वर्ट करना सर? क्योंकि जो नाइट्रोजन, द सॉइल विच इज फीलिंग डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन ऑन देयर प्रॉपर्टी, दे विल गेट बैक द नाइट्रोजन। अमोनिया में कन्वर्ट करने का रीजन ये है कि जो नाइट्रोजन लॉस हो चुका था प्लांट का, जो नाइट्रोजन मिट्टी का लॉस हो चुका था, प्लांट इस्तेमाल कर लिया था, उस नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में लाने के लिए ये दोनों बैक्टीरिया काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ये पॉइंट, अमोनिया is used to convert into amino acid nitrates enriching the soil। enriching the soil कहने का मतलब यह वापस से नाइट्रोजन को लाना सॉइल के अंदर। नाउ रिफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन द सॉइल, और यही टर्म को कि नाइट्रोजन को वापस मिट्टी के अंदर लाना अमोनिया के फॉर्म में, यही कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन को वापस से अमोनिया के फॉर्म में मिट्टी में लाना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो एनिमल और डेथ रिमेन्स है, प्लांट और एनिमल का जो भी डेथ मतलब सड़ा गला चीज जो भी है हमारे अंदर बॉडी में, आपके अंदर बॉडी में नाइट्रोजन अभी भी है। हम लोग जब एक्सक्रीट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं या फिर जब हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं उस टाइम में भी हमारा नाइट्रोजन ही बाहर जाता है। तो हमारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको कन्वर्ट कराया जाता है अमोनिया में। अमोनिया में कैसे कन्वर्ट कराया जाता है? तो अभी आप देखिए, अब ये अमोनिया को कन्वर्ट कराया जाता है अमोनिकल कंपाउंड में। किसके द्वारा कन्वर्ट कराया जाता है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है, ये सब बैक्टीरिया ध्यान रखिएगा, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में, एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम सॉइल के अंदर पाया जा रहा था, जो कि फ्री नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर रहा था अमोनिया में। क्यों? ताकि सॉइल का वापस से जो न्यूट्रिशन लॉस हुआ है वो वापस से गेन हो सके। दूसरा, नाइट्रोजिनस वेस्ट को अमोनिया में कन्वर्ट इसलिए कराया गया ताकि मिट्टी के अंदर अमोनिया स्टोर हो सके, नाइट्रोजन का फॉर्म वापस रह सके। अब अमोनिया को फिर कराया गया अमोनिकल कंपाउंड में। क्यों कराया गया सर? अमोनिया को यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं, प्लांट अमोनिया को अब्जॉर्ब नहीं करता है। अमोनिया का लूज फॉर्म, जो यहाँ पे हम आपको बताएं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, ये फॉर्म में प्लांट यूज करता है, खास करके नाइट्रेट्स में सॉल्युबल फॉर्म में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है वाटर के साथ और वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जाइलम के द्वारा। तो अमोनिया को कन्वर्ट कराया गया अमोनिकल कंपाउंड में। क्यों कन्वर्ट कराया गया? ताकि वो इजिली एब्जॉर्ब हो सके। और नाइट्रेट्स का फॉर्मूला NO2- और नाइट्रेट्स का NO3-, सॉरी यहाँ हम नाइट्रेट्स बोल दे, ये है नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स का फॉर्मूला NO2- और नाइट्रेट्स का NO3-। अब अमोनिया को कन्वर्ट कराया गया अमोनिकल कंपाउंड में। क्यों कराया गया? सॉरी, किसके द्वारा कराया गया? नाइट्रोसोमोनास। क्यों कराया गया? हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। अब अमोनिकल कंपाउंड जो कि था नाइट्राइट को फिर कन्वर्ट कराया गया नाइट्रेट्स के अंदर। क्यों कराया गया? ताकि ये जो नाइट्रोबैक्टर है जो कि रोल प्ले कर रहा है इसको कन्वर्ट कराने में, वो इसलिए कर रहा है ताकि प्लांट और भी ज्यादा अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर सके, मिट्टी को वापस अमोनिया मिल सके, सॉरी नाइट्रोजन मिल सके। और मिट्टी को अगर नाइट्रोजन मिल पाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर, ये प्लांट बॉडी के अंदर इजिली
डीएनए का सिंथेसाइज हो पाएगा, अमाइनो एसिड हो पाएगा, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल बन पाएगा, क्योंकि ये जितना भी कंपाउंड हम आपको नाम ले रहे हैं, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, प्रोटीन हो, क्लोरोफिल हो, सब में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल जरूर प्रेजेंट होता है। क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पे बताया जाता है। तो ये नाइट्रेट्स में हो गया, और इसी नाइट्रेट्स को, जो नाइट्रेट्स ग्राउंड में अवेलेबल है, इसी नाइट्रेट्स को एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कराना, वापस से उसको एटमॉस्फेयर में भेज देना, जहां से वो आया था वहां भेज देना। कहां से आया था? एटमॉस्फेयर से आया था। ये राइजोबियम इस्तेमाल कर रहा था सॉइल वाला ना, तो सॉइल में कहां से आया? वो ऊपर से वर्षा हुआ तो कुछ नाइट्रोजन नीचे गिरा, नाइट्रोजन गिरने और साथ में कुछ सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बाय नेचर, प्लांट्स के द्वारा अवेलेबल होता है, मतलब चारों तरफ से नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। तो क्योंकि 78% नाइट्रोजन है इस अर्थ में, हम लोग जानते हैं। इसी नाइट्रेट को फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कराना डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, ये होता है सीडोमोनास। तो इसी को बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सीडोमोनास को बोला जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रेट्स को वापस एटमॉस्फेयर के अंदर वो भेज देता है। अब देखिए, नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर डीएनए फॉर्मेशन। डीएनए फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बिल्कुल सही, अभी हम बताएं। प्रोडक्शन करता है अमाइनो एसिड का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का। ओके, ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। आप ध्यान रखिएगा, राइजोबियम, दूसरा एजिटोबैक्टर क्लॉस्ट्रिडियम। आपके क्लास के हिसाब से इतना ही है, नहीं तो अभी और भी है। एसिमिलेशन है, एमोनिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, वो सब प्रोसेस हम सोचे बता दें, लेकिन वो ज्यादा लेंदी हो जाता है। इतना आपके जितना जरूरत है उतना ही आप पढ़िए, काफी है। एजिटोबैक्टर क्लॉस्ट्रिडियम याद रखिएगा, नाइट्रोसोमोनास याद रखिएगा, नाइट्रोबैक्टर याद रखिएगा, और एक सीडोमोनास याद रखिएगा। ये सब सारा इंपॉर्टेंट, 1 2 3 और एक आपका 4 5 6 नाम टोटल बैक्टीरिया का याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में एक हमारा इमोशंस को समझते हुए, हमारे फीलिंग्स को समझते हुए, कि हम अगला वीडियो आपको और अच्छे एनर्जेटिक भाव से दे सकें, इस चीज को समझते हुए प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमको अंदर से मनोबल बढ़ सके। ओके, थैंक यू।